ब्रेक में स्वागत है आपका। लगातार हम बड़ी बहस कर रहे हैं कांग्रेस में बगावत के बवंडर की नौबत आखिर क्यों आई। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं परिचय करा दूं अपने खास मेहमानों का। तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद है, एनके सिंह साहब मौजूद है, राजीव जेटली मौजूद है, मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित दुबे भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन इनके साथ हम चर्चा करें उससे पहले इस वक्त सीधे आपको पुडुचेरी लिए चलते हैं, जहां पर अमित शाह कुछ कह रहे हैं। இங்கே புதுச்சேரியிலே இப்போது இங்கே வந்து இங்கிருக்கும் நிகழ்வுகளையும் என் கண்ணார கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். இங்கே நடந்திருக்கும் நிகழ்வுகளை என் அரசியல் அனுபவத்தை வைத்து உங்கள் முன் சொல்கிறேன். வரும் தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைமையிலே தான் புதிய ஆட்சி மலரப் போகிறது. இதுதான் उन्மை. मित्रों, हम जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 से हम प्रयासशील थे कि पुडुचेरी छोटा सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूरे देश भर के अंदर एक मॉडल राज्य बने। नरेंद्र मोदी जी ने 115 से ज्यादा योजनाओं को यहां भेजकर पुडुचेरी के सर्वांगीण विकास के लिए आगे कदम बढ़ाए। मगर यहां एक सरकार थी जो छोटी पॉलिटिक्स करना चाहती थी। इनके मन में डर था कि अगर ये योजनाएं पुडुचेरी के अंदर लोकप्रिय होती है तो उनकी नींव खत्म हो जाएगी। इन्होंने योजनाओं को नीचे नहीं दिया। नारायणसामी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। मगर मैं आज आपको वादा करता हूं, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दीजिए, एक छोटे से राज्य को हम भारत का गहना बनाकर दुनिया के सामने रखेंगे। நண்பர்களே, 2014 நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆட்சி அமைத்த போதே இந்தியாவிலேயே இருக்கிற சின்ன மாநிலமான புதுச்சேரிய இந்தியாவிலேயே உதாரண மாநிலமாக மாடல் ஒரு பிரதேசமாக உருவாக்கி காட்டணும்னு முடிவெடுத்தார். 115 திட்டங்களை இந்த மாநிலத்துக்காக அனுப்பி வச்சார். ஆனா இங்க இருந்த அரசாங்கம் மிகவும் சின்னத்தனமாக மிகவும் கீழ்த்தரமாக நடந்து அந்த திட்டங்கள் எல்லாம் வராம தடுக்கிற வேலையை மட்டும்தான் நாராயணசாமி பண்ணார். மக்களுக்கு நல்ல திட்டங்கள் வராம கெடுத்துட்டார். ஆனா நான் உங்களுக்கு ஒரு உத்தரவாதம் தரேன், ஒரே ஒரு முறை பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஆட்சியில் அமர்த்தி பாருங்கள், புதுச்சேரி இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த மாநிலமாகும். मित्रों, अभी अभी बड़ा कोहराम मचा है कि कांग्रेस की सरकार टूट गई। कांग्रेस के कुछ मित्र भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया। भाई, आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले। इस प्रकार के झूठे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। நண்பர்களே, இங்கிருக்கும் காங்கிரஸ் ஆட்சி தானாக கவிழ்ந்து விட்டது. அதிலிருந்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் எல்லாம் ஒருவர் பின் ஒருவராக பாரதிய ஜனதா கட்சியிலே வந்து தன்னை இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாராயணசாமி அவர்களே, உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன், இந்த நிகழ்வு எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? அவங்களெல்லாம் என்ன நடக்கிறாங்களே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியலையே. உங்க தலைவருக்கே நீங்க பொய் சொன்னவராச்சே. அப்ப உங்க கூட இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் பொய் சொன்னதுனால தானே அவங்க எல்லாம் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு வந்திருக்காங்க. मित्रों, मुझे मालूम नहीं है देश में बेस्ट रीलर अवार्ड दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, मगर बेस्ट रीलर अवार्ड, सबसे बड़ा झूठ बोलने का अवार्ड अगर दिया जाता है तो बेस्ट रीलर अवार्ड नारायणसामी जी को जरूर मिलना चाहिए। உலகத்திலே நல்ல பொய் சொல்றவருக்காக ஒரு விருது கொடுக்கணும்னா அது உங்க முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமிக்கு தான் அந்த பொய் சொல்ற விருது கொடுக்கணும். मित्रों, उनकी नजर पुडुचेरी के विकास के लिए नहीं होती थी। उनकी नजर गांधी परिवार की सेवा करने में और चरण स्पर्श करने में ही इनका ध्यान रहता था। அவரோட எண்ணம் நோக்கம் செயல் எல்லாம் மக்கள் முன்னேறணும்னு நினைக்கலீங்க. அந்த காந்தி குடும்பம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே டெல்லியில, அவங்க வளர்ச்சியை தான் நினைச்சு அவர் செயல்பட்டார், மக்கள் வளர்ச்சி பத்தி நினைக்கல. मित्रों, आप मुझे बताइए, ये इतने सारे बड़े बड़े नेता पुडुचेरी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं,
कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुदुचेरी में नहीं पूरे देश भर में बिखर रही है. காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து எல்லா தலைவர்களும் ஒருத்தர இங்க வந்துட்டு இருக்காங்க. இது காரணம் என்ன? அங்க என்ன மகாராஜா மாதிரி குடும்ப ஆட்சி நடக்குது. நான் சொல்றேன், பாண்டிச்சேரி மட்டுமில்ல, மொத்த இந்தியாவிலேருந்தும் காங்கிரஸ் காணாமல் போகும். क्योंकि वहां पर मेरिट का स्थान नहीं है. मैं पुदुचेरी की जनता को याद कराना चाहता हूं, गत चुनाव में कांग्रेस पार्टी नमः शिवायम के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और जब मुख्यमंत्री बनाने का बारी आई तो गांधी परिवार के पैर कौन पकड़ता है, इसको मेरिट मानकर नारायण सामी को मुख्यमंत्री बना दिया. इससे बड़ा पुदुचेरी की जनता के साथ धोखा और कोई नहीं हो सकता. तो अमित शाह को आप सुन रहे हैं पुडुचेरी के करईकल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, और बड़ी बात जो अमित शाह ने कही वो ये कि देखिए पुडुचेरी में एक ऐसे सीएम बने जो ट्रांसलेट भी गलत करके बताते हैं. आपको वो वाकया याद होगा जब राहुल गांधी पुडुचेरी पहुंचे थे और नारायण सामी उनके साथ मौजूद थे. एक महिला ने अपनी व्यथा बताई और उस महिला ने शिकायत दरअसल की थी मुख्यमंत्री के खिलाफ. तो मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए ये तारीफ कर रही है, जो काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया उसकी तारीफ कर रही है. तहसीन अब अमित शाह भी चुटकी ले रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया जो ट्रांसलेट भी गलत करके बता रहे हैं अपने आला कमान को. ऐसे व्यक्ति को इस मुल्क ने गृह मंत्री बनाया जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा, मैं उनको कोट करता हूं कि क्या फारूक अब्दुल्ला के कनपट्टी पे बंदूक रखकर लाना चाहिए उन्हें, और पार्लियामेंट में झूठ बोला कि फारूक अब्दुल्ला साहब पर कोई केस नहीं था. ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया. ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया जिनके सपूत्र आज क्रिकेट बोर्ड में, और एक भी न्यूज चैनल में एक गट्स नहीं है पूछने को क्योंकि सपूत्र वहां क्यों है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं उस केस को नहीं सुन रही कि वो सुप्रीम कोर्ट लोढा कमीशन के रिपोर्ट कंडीशंस के बावजूद क्यों है. ये गट्स मुझ में है और किसी में नहीं है. लेकिन मैं एक बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं. आप लोग अच्छी बात है, आप लोग अमित शाह जी की रैली दिखाते हो, वेस्ट बंगाल दिखाते हो, कभी कभी तमिलनाडु, आसाम भी दिखा दीजिए, केरला भी दिखा दीजिए. दिखाते हैं, आप न्यूज नेशन देखिए. मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ सर, हम सब कुछ दिखाते हैं. मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया की, मैं आपकी नहीं मीडिया की बात कर रहा हूँ. आप तो बहुत न्यूट्रल चैनल है, मतलब आप सोचिए, आप तो बहुत अच्छे चैनल हो. आपके ही चैनल पे मोदी जी ने कहा था कि हवाई जहाज रेडार से क्लाउड के पीछे छुप सकते थे, और आपने दिखाया आपने किस तरह से मोदी जी की खिल्ली हुई. तो अब इस तरह की बातें, आप लोग न्यूट्रल चैनल हो, मैं दूसरे चैनल की बात करता हूं. जो रिस्पांस तमिलनाडु में राहुल गांधी को मिल रहा, केरल में, आसाम जीतेगी कांग्रेस, लिख कर लेना, काउंटिंग दिन पे मैं आपके साथ हूं. आसाम, केरल, तमिलनाडु कांग्रेस जीत रही है. दिखाइए. हम सब दिखाते थे. ऐसे न्यूज नेशन देखना शुरू कर दीजिए हमारे साथ. ठीक है. हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी मौजूद है. विनोद जी, आप काफी देर में जुड़े हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी क्योंकि लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आज जो कांग्रेस पार्टी में एक बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है. सर, सीधा सवाल आपसे. देखिए, बगावत मुझे लगता है किसी भी पार्टी की राजनीतिक दल के वाइब्रेशन का निशानी है. अच्छी बात है, अगर पार्टियों में विरोध के स्वर उठेंगे तभी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा. और कम से कम कांग्रेस पार्टी में अगर कुछ लोग अपनी बात कह पा रहे हैं तो इसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी ये तो मैं अभी नहीं मानता. लेकिन अगर गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे पुराने वरिष्ठ लोग अपनी बात कह रहे हैं तो ये तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अच्छी बात है, और ये बात तो हर पार्टी को होनी चाहिए मुझे लगता है. और मुझे लगता है कांग्रेस नेतृत्व को उनकी बात को सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके हिसाब से कोर्स करेक्शन करना चाहिए. तो मैं इसको बगावत तो भी नहीं मानता हूं. अगर पार्टियों में विरोध के स्वर नहीं उठेंगे तो माना जाएगा तानाशाही है, और अगर कोई अपनी बात कहेगा तो हम उसको बगावत करने लगेंगे. मुझे लगता है ये प्रवृत्ति जो है ये भी ठीक नहीं है. पार्टियां वाइब्रेंट हो, ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है. राजीव जी, जो बात आप कह रहे थे, देखिए यहाँ पर तो लोकतंत्र है. अग्निहोत्री साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं, अभी आप यही कह रहे थे कि परिवार है, यहाँ लोकतंत्र है तभी नेता बोल पा रहे हैं. यही आरोप लगा रहे थे अभी आप थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी पर. देखिए, आप किसके सामने जाकर गुहार लगा रहे हैं. आपने खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर दिया. आप कह रहे हैं ये गांधी की पार्टी है. अरे कम से कम ये तो स्पष्ट कर देते कौन से वाले गांधी जी की पार्टी है. गांधी जी में वो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी की बात कर रहे हैं, वो कौन से गांधी की बात कर रहे हैं. यही तो कंफ्यूजन है. मैंने आपसे पहले भी कहा था ये उनका आंतरिक मसला है, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते. ठीक है, अभी आंतरिक मसला आप कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपने ये कहा था कि देखिए लोकतंत्र नहीं है, बात नहीं कर सकते. कम से कम इसकी तारीफ तो कर दीजिए. अगर कुछ नेता बगावत कर रहे हैं, अपनी बात मैंने नहीं कहा आपको, आप समझे नहीं. मैंने कब कहा लोकतंत्र नहीं है.
अरे जब नेता ही नहीं है वहां तंत्र की जरूरत ही क्या है? वहां तो कोई भी बात रख सकता है। जब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है। हमारे समर्थक, हम जो समर्थक है, गांधी जयंती पर महात्मा गांधी की जय ट्रेंड करते हैं। मोदी जी के समर्थक महात्मा गांधी के जिस दिन पे वो शहीद हुए उस दिन गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड करते, और मोदी जी ये नहीं कहते कि ये गलत है। गोडसे जिंदाबाद नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा था और मोदी जी के समर्थक, वेरीफाइड समर्थक इसे ट्रेंड करते। तहसीन मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, तहसीन अब सीधे सवाल का सीधा जवाब दे दीजिएगा कि ये नौबत जो आई है आज, ये फिर ना आए। आपकी पार्टी लगातार 2019 के बाद से, 14 के बाद से कमजोर होती जा रही है। कैडर बिल्कुल हतोत्साहित है, निराश है। उसमें जान फूंकने के लिए तो कुछ तो करना होगा ना। स्थायी नेतृत्व आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आपके नेता जो है वो कंटिन्यूटी में रहते ही नहीं है, तो ये कब होगा? कैसे विश्वास जीतेंगे आप लोगों का? किसी को इस पार्टी में गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति आजाद है चुनाव लड़ने के लिए राहुल जी के खिलाफ। चुनाव फ्री एंड फेयर होते, तो कब नड्डा जी के चुनाव की तरह नहीं होता कि आरएस। तो राहुल गांधी को अध्यक्ष चुन रहे हैं ना, आप कह रहे हैं? जिसके भी खिलाफ लड़े, चुनाव फ्री एंड फेयर होता। जितेंद्र प्रसाद जी के पिताजी सोनिया जी के खिलाफ लड़े थे। कांग्रेस के 130 साल के इतिहास में, 135 साल के इतिहास में गांधी नेहरू परिवार के जो सदस्य प्रधान अध्यक्ष बने वो सिर्फ 40 साल है, बाकी साल अलग लोग बने। आप मुझे आरएसएस का एक बीजेपी का अध्यक्ष बना रहे जो आरएसएस के बाहर से हो। एक महिला बता दें जो बीजेपी की अध्यक्षता रही हो, ले संभाली हो, एक महिला। ठीक है, एनके सिंह साहब, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि गांधी परिवार से अब जो अध्यक्ष है वो नहीं होगा। उसके बाद इंटरिम अध्यक्ष बनी सोनिया गांधी। आखिर क्या ऐसी वजह है कि गांधी नेहरू परिवार के इतर कांग्रेस के और नेता भी नहीं सोच पाते हैं? नहीं, देखिए आज वो स्थिति नहीं है। एक मोदी जैसा शख्सियत है, बीजेपी जैसा संगठन है। अगर आपको मुकाबला करना है तो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बैकअप, स्ट्रॉन्ग कैडर, कमिटेड कैडर ये डेवलप करना पड़ेगा। राहुल गांधी के वो क्षमता नहीं है। राहुल गांधी रहेंगे तो ऐसे ही पार्टी गिरती रहेगी। आपको इमीडिएटली राहुल गांधी नहीं तो कौन है एनके सिंह साहब? एक नया नेतृत्व आपको लगता है कोई आएगा लड़ने में? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उसमें यंग है। बिल्कुल आ सकता है। ये दिखाई नहीं देता है कई बार पॉलिटिकल पार्टी में। नरेंद्र मोदी कहां दिखाई देते थे? आप याद कीजिए 2010 अपने नेताओं को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। अशोक सिंह जवाहर अलग मोर्चे पे जा रहे हैं। जब हेमंत बिस्वा शर्मा हुआ करते थे उनको वो रोक नहीं पाए। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट की स्थिति जाकर उन्होंने बीजेपी की कितनी अच्छी कर दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे मुलाकात कर लीजिए, मुलाकात तक नहीं हो पा रही थी। और जब आप राहुल को, बिल्कुल राहुल से बचना पड़ेगा। राहुल का नेतृत्व रहेगा तो ये सब होता रहेगा, पार्टी नीचे जाती रहे, क्योंकि राहुल में वो क्षमता नहीं है। तहसीन ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन राहुल के नेतृत्व में या अब इस समय की जो वर्तमान लीडरशिप है उसमें ये पार्टी खत्म हो जाएगी और लगातार खत्म हो रही है। तहसीन सवाल ब्रेक के बाद आपसे ही होगा, क्या ऐसे ही नेता छिटकते रहेंगे? लेकिन आपको आइडियोलॉजी जी ठीक, क्या ऐसे ही नेता छिटकते रहेंगे? क्या ऐसे ही बगावत होती जाएगी या कभी कांग्रेस पार्टी में अब मजबूती भी आएगी? और अगर आएगी तो कैसे आएगी? क्या आपका रोड मैप है? एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। स्वागत है आपका और लगातार चर्चा जारी है। कांग्रेस में बगावत के बवंडर का जिम्मेदार कौन है और ये नौबत क्यों आई? तहसीन पूनावाला लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव जेटली मौजूद है बीजेपी से, एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अग्निहोत्री जी, सवाल अब आपसे ये है कि अब कांग्रेस का आगे क्या आपको दिखाई देता है? ये स्थिति क्या इशारा कर रही है और आगे क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से रिवाइव कर पाएगी? चूंकि इतना वक्त हो चुका है, चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष है सोनिया गांधी, अध्यक्ष तक तो चुना नहीं जा रहा। कांग्रेस पार्टी को अब परिवार और पार्टी के बीच में तय करना है कि पार्टी को कैसे चलाया जाए। जाहिर है ये बात सही है कि जो नेहरू गांधी परिवार है वो कांग्रेस का एक ग्लू है, सीमेंटिंग फैक्टर है, लेकिन ये भी सवाल है कि वो पार्टी को आगे ले जाने में कितना सक्षम है। क्या राहुल गांधी पार्टी को वापस आगे ले जा सकते हैं या उनकी जगह कोई और विकल्प हो? ये एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब गांधी परिवार से आगे की सोचेगी, तब शायद जरूर कुछ रास्ता निकले। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक संकट यह भी है कि वो परिवार से आगे सोचने के बजाय वो अभी यही तय नहीं कर पा रही है
कि उसको करना क्या है। ये जो G23 जिसकी हम बात करते हैं, जो गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, सारे लोग हैं, अभी तक इन्होंने राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। अभी ये बार बार कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी अध्यक्ष कौन बने, क्या बने, इस पर इनकी कोई राय नहीं है। कल जम्मू में भी जो इनकी मीटिंग हुई उसमें भी किंतु परंतु करके बात हुई, लेकिन कोई स्पष्ट बात अभी सामने नहीं आएंगे। तो अभी यही लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं, या तो विकल्प के तौर पर किसी का नाम आगे करें कि भाई ठीक है गुलाम नबी आजाद संभालेंगे कमान, आनंद शर्मा संभालेंगे, कपिल सिब्बल संभालेंगे, मनीष तिवारी संभालेंगे, हुड्डा संभालेंगे, कोई विकल्प के सामने तौर पर सामने लाए जो कांग्रेस पार्टी के भीतर एक मंथन की शुरुआत करे। अभी तो ये पहले आपस में तय कर लें। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा है, क्या इसके लिए सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं? क्या ये नेता जो है ये 40 साल से तमाम पदों पर रहे हैं, ये जिम्मेदार नहीं है क्या? गुलाम नबी आजाद साहब जिन जिन राज्यों के प्रभारी रहे उन राज्यों में क्या हाल हुआ कांग्रेस पार्टी का? आनंद शर्मा अपने हिमाचल प्रदेश में कितना पार्टी को जिता पाए? एक हुड्डा को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी सारे नेताओं को देख लीजिए। तो ये लोग विभिन्न पदों पर रहे, राज्यसभा से लेकर के पार्टी के तमाम पदों पर। आज कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं से बात करिए, वो कहते हैं कि ये बहुत वैलिड की जो पॉइंट दुर्दशा आपने है, उठाया। उसके लिए ये एनके लोग सिंह साहब, मुझे जिम्मेदार याद है राहुल गांधी ने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो वो कह रहे थे कि मैं ही लड़ रहा था चुनावों में और कोई मेरा साथ देने नहीं आ रहा था। ये इन नेताओं की भी तो जिम्मेदारी बनती थी। देखिए, भारत में जो पॉलिटिकल कल्चर है वो यूनि लीडर का कल्चर है। नेहरू डार्लिंग ऑफ द मासेस होते थे, इंदिरा गांधी आई तो वही की वही रही। भारत में इवन बीजेपी में आप देख लीजिए, बीजेपी में आज मोदी के बरक्स कौन लीडर खड़ा है? तो ये भारत की जनता का कल्चर है कि वो एक ही लीडर को रिकॉग्नाइज करती है। सोनिया गांधी को वोट मिलते थे, 2004 में सोनिया गांधी को वोट मिले, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनी, 2009 में फिर जनता ने जिताया। तो ये यूनि लीडर का कल्चर ही भारतीय समाज की, ये समाज की देन है। लिहाजा कलेक्टिव लीडरशिप यहाँ पे होती ही नहीं है। आज मोदी जी की बीजेपी देख लीजिए, किसी चीफ मिनिस्टर की हिम्मत है कुछ बोल देने की? नहीं बोलता है। लिहाजा चेहरा सेंट्रेड राजनीति आप कह रहे हैं। ठीक है, राजीव जेटली जी, एनके सिंह साहब, वक्त बहुत कम है। राजीव जेटली जी, आप चूंकि सत्ता में है और आपके सामने जो विपक्ष है वो कमजोर होता हुआ है, क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल कोई सलाह नहीं देना चाहेंगे। ये उनके आंतरिक मसला है और उनके पास अच्छी लीडरशिप है जो मुझे लगता है इस बारे में निर्णय ले सकती है। तहसीन अब आगे क्या? ठीक है सर, समझ गए। तहसीन अब आगे क्या? छोटा सा जवाब। ये जो लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लोग जाए केरल, तमिलनाडु, आसाम, करे कैंपेनिंग, राहुल जी की मदद करे। 5 में से 3 राज्य कांग्रेस जीत गई है। मैं आपके साथ काउंटिंग दिन पे रहूंगा, केरल, तमिलनाडु और आसाम। ठीक है, करिए राहुल गांधी की मदद। ठीक है, ये तो G23 नेताओं को आपको समझाना चाहिए ना कि वहां पे बगावत मत करिए। G8 या 9। ठीक है सर, वक्त बिल्कुल नहीं है, वक्त बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।